So welcome to the students for the new lecture on the topic flow through the pipe. So आज जो मेरा लेक्चर है, today we will discuss about the compound pipe or pipe in series. So first of all, we will understand that what is the compound pipe or why when we say why we say the pipe are connected in series, what does it means? So its definition, you can say, as per the definitions, the pipes which are connected, pipes of the different diameters and the different length, when they are connected end to end in series. So such arrangement of the pipes when they are connected end to ends, ये जो आपका arrangement होगा, this arrangement you can say that pipes are connected in series. You understand? So another name you can say this is also called as a compound pipe. Compound means that we are having the pipe of a different diameter. The pipe diameter is not uniform, right? So because we are having the different pipes of the different length and the different diameter, so definitely what happens that their diameter is not constant. So when we can say 2, 3, 4, more than that, different diameters of the pipes or different length of the pipes are connected to each other, to one another. So that is also called as such, that arrangement is also called as the compound pipe. You understand? अब जहाँ पे जो मैंने ये आपका अरेंजमेंट जो जहाँ पे बनाया है, here you will see in the arrangement, this is your tank A and this is your tank B. You understand? This tank is completely filled and the water level of the tank is given here, and this is also the tank is filled, the water level of the tank is given here. You understand? So pipes are connected from tank A and we are carrying the water from tank A to tank B. जहाँ से जो वाटर लेवल है इसका क्या होता जाएगा, जहाँ से पानी जाता जाएगा और जहाँ से पानी इसमें फिल होगा. एंड देन एट वन स्टेज यू कैन से बोथ देयर जो वाटर लेवल होगा दे विल मेंटेन देयर लेवल कांस्टेंट. यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द अरेंजमेंट विच आई हैव टेकन हियर. This is the datum line I have taken, and ZA you can say this is the height of the water level in tank A from the datum line, and this is the height of the water level in tank B from the datum line, that is denoted by ZT. This is also called the potential head or the datum head, that is here. So this is your pipe number 1. I say this is your pipe number 1. ये आपकी pipe number 1 है. तो पाइप नंबर 1 जो आपका है, इसमें इसका जो लेंथ है, दिस इज आई विल से दिस इज L1, और जो इसका डायमीटर है पाइप का, दिस इज D1. नाउ दिस इज योर पाइप नंबर 2. इसमें जो इसका लेंथ है दैट इज L2 और डायमीटर D2. एंड एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम विच आई हैव शोन हियर, द डायमीटर आई हैव ट्राइड टू शो हियर दैट द डायमीटर is different here, right? So length is different and diameter is different. So this is your now pipe number 3. तो पाइप नंबर 3 का इसका भी लेंथ जो है L3 है और आपका डायमीटर D3 है. You understand? Likewise, as the fluid is flowing from pipe 1 to pipe 2 and pipe 3, so their velocities we will also define here. We will write down. I will say pipe 1 का जो velocity है B1 है, पाइप 2 का वेलोसिटी B2 है, और B3 is the velocity of the fluid in the pipe 3. You understand? There is one more condition here that discharge जो इसका इसमें होगा Q1, this is equal to Q2 and this is equal to Q3. अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है, try to understand, if the cross section area of this pipe number 1 is more and this is less, this is again more. तो what happens here, अगर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा है तो जहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कम होगा. You understand?
और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होगा, और अगर क्रॉस सेक्शन एरिया इसका बहुत ज़्यादा है तो वेलोसिटी और ज़्यादा कम होगा। तो क्या होगा यहाँ पे कि when the pipes are connected in series, discharge in each pipe is same. You understand that? That is discharge किससे हम denote करते हैं? That is A1 B1. This is equal to A2 B2 and this is equal to A3 B3. So discharge in each and every pipe is same, right? So this is also the condition in case of this when the pipes are connected in series. अब जहाँ पे हम एक और very beautiful concept we will understand here. So this is the arrangement which I have taken here. Apply the Bernoulli's theorem. अच्छा, इसमें देखिए अब डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल क्या होगा। सपोज करो इसका वाटर लेवल जे है, तो इसको मैं इस तरीके से अगर ले जाऊँ आगे, ये आपका वाटर लेवल जे है, राइट। तो जो डिफरेंस इन वाटर लेवल होगा वो क्या होगा, इसका वाटर लेवल जे है तो इसका वाटर लेवल, तो ये जो डिफरेंस है दिस इज द डिफरेंस इन वाटर लेवल। ये जो डिफरेंस इन वाटर लेवल है दिस इज डिनोटेड बाई एच हेड, राइट। डिफरेंस इन वाटर लेवल्स ऑफ द टू टैंक ए बी, जो उनका वाटर लेवल का डिफरेंस होगा दैट इज डिनोटेड बाई एच। अब ये एच किसके बराबर होगा व्हेन द टू टैंक्स आर कनेक्टेड बाय द पाइप्स विच आर इन सीरीज। अब देखिए इसके लिए क्या करें हम, जस्ट अंडरस्टैंड, अप्लाई So apply Bernoulli's equation, apply Bernoulli equation कहाँ पे अप्लाई करें आप, ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर टैंक, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर टैंक, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर, फ्री सरफेस ऑफ द वाटर कहाँ पे है, जहाँ पे सपोज मैं कहता हूँ ये आपका ए पॉइंट है, ठीक है, on the free surface of the water tank A and free surface of the water tank B. So you can say apply the Bernoulli's equation at point A and B, and but where the A is on the free surface of the water tank, free surface of the water, जो वाटर लेवल का जो फ्री सरफेस होगा उसके ऊपर अप्लाई करें Bernoulli's equation at tank A, and likewise B is the point on the free surface of the water level on the tank B. तो मैं सीधा लिखूँ apply Bernoulli's equation at point A and B, right? So at point A and B, right? Bernoulli's equation आप point A और point B के ऊपर आप अप्लाई कर लीजिए, you understand? तो क्या है Bernoulli's equation, देखिए PA by rho G. PA is the pressure on the free surface of the water in the tank A, PA by rho G plus BA। अगर मैं जो इसका वेलोसिटी है सपोज स्पेस के ऊपर मैं इसको BA से डिनोट करता हूँ, BA स्क्वायर बाई 2G, दिस इज द काइनेटिक हेड और डायनेमिक हेड, and this is your jet A potential head from here to here, from the datum line to the free surface of the water level, that is jet A. This is equal to PB plus BB square by 2G plus ZB plus HL. You understand? HL क्या होगा? HL आपके लॉसेस होंगे, यू अंडरस्टैंड, HL दे आर द लॉसेस। अब देखिए यहाँ पे R यू कैन से PA क्या होगा, व्हाट इज योर PA, प्रेशर ऑन द फ्री सरफेस ऑफ द वाटर लेवल। बहुत दफ़ा हमने पढ़ा है, इसको याद रखिएगा, PA क्या होगा, प्रेशर ऑन द free surface of the water level
this is equal to 0. Likewise, because the water is flowing from here, this is the opening, this is a very big tank, and on the top you will see if there, you will not find any movement of the water there. कभी भी अगर आप देखें, नोटिस करें, बहुत बड़ा टैंक है और एक ओरिफाइस से पानी नीचे से निकल रहा है, you will not find that there is any velocity on the free surface of the water. You just find that the water is still there, right? तो जहाँ पे इसका मतलब यह है कि जो बी ए है, that is बी ए, velocity on the free surface of the water, this is equal to 0. इसी तरीके से पी वी भी आपका 0 होगा ऑन द फ्री सरफेस ऑफ वाटर, 0, एंड जो बी वी भी है वो भी क्या होगा आपका 0 होगा. यू अंडरस्टैंड? तो ये चीज़ें आपकी क्या होंगी 0 होंगी. तो ये पुट कर दीजिए आप इक्वेशन में. सो यू विल गेट देयरफॉर 0 प्लस 0 प्लस जेड ए, दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 0 plus ZB plus HL. You understand? R आप ऐसे लिख सकते हैं ZA minus ZB is equal to HL. So difference of ZA minus difference of ZA and ZB. What is ZA? ZA, this is the height from the datum line to the free surface of the water of tank A, and ZB, that is the height or potential head, you can say, from the datum line on the free surface of the tank in water, tank V. So then what is the difference? ये जहाँ से लेके जहाँ तक ZA है और जहाँ से लेके जहाँ तक क्या है ZB है. So this difference, ये जो आपका ये difference मैंने H लिखा था, you can say this is equal to ZA minus ZB. You understand? This difference, ये जो height का difference था, water level जो दोनों का difference था, this is equal to ZA minus ZB. That is the potential head at point A minus the potential head at potential head for the tank A minus the potential head of the tank B. So this is the difference in water level and this is equal to H. You understand? तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, therefore H, ये क्या है ZA minus ZB, this is H, this is equal to HL. So this is another concept you will get here. ये आपको एक और जहाँ पे कंसेप्ट क्या मिला, the difference in the water level of two tanks, this is equal to the head losses in the pipe. You understand? जो डिफरेंस आएगा वाटर लेवल टू टैंक का, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके बराबर होगा? दिस इज इक्वल टू द लॉसेस इन द पाइप. अगर लॉसेस पाइप में कम है तो डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल इन टू टैंक्स कम होगा. अगर लॉसेस ज़्यादा है तो डिफरेंस इन वाटर लेवल इन द टैंक ज़्यादा होगा. यू अंडरस्टैंड? So this is, you can say, this is one conclusion, one concept you have got here. तो क्या concept आपको मिला? That is conclusion क्या हुआ इसका? क्या concept मिला? The difference in water levels of two tanks is equal to the head losses in the pipe.
यू अंडरस्टैंड। तो अगर आपको एलिवेशन का डिफरेंस निकालना है तो उसके लिए क्या करें, आप हेड लॉसेस जो पाइप में है उसे आप कैलकुलेट करें एंड दिस इज इक्वल टू दिस वन, यू अंडरस्टैंड। तो ये अनदर कंसेप्ट वी हैव गॉट हियर, यू अंडरस्टैंड। अब एक छोटी सी इक्वेशन को हम देखिए ड्राइव क्या करेंगे, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है एंड वी हैव टू फाइंड द लॉसेस, नाउ वी हैव टू फाइंड द लॉसेस, क्योंकि हमें डिफरेंस इन एलिवेशंस ऑफ द टू टैंक्स निकालने के लिए, ये हेड निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, व्हाट वी नीड द लॉसेस इन द पाइप। अब लॉसेस हम पाइप में कैसे निकालेंगे व्हेन वी आर हैविंग द पाइप ऑफ द डिफरेंट डायमीटर्स एंड दे आर कनेक्टेड एंड टू एंड। तो कहाँ कहाँ पे हमें लॉस मिलेंगे, कौन कौन सा हमें लॉस मिलेगा, मेजर लॉस क्या होंगे, माइनर लॉस क्या होंगे। तो लॉसेस के बारे में भी मैं आपको जहाँ पे पहले डिटेल में बता देता हूँ, यू अंडरस्टैंड कि अगर इस तरीके से अरेंजमेंट है एंड यू हैव टू फाइंड द लॉसेस, तो लॉसेस निकालना आपको आना चाहिए। देखिए अब देखिए ये आपके पास अरेंजमेंट था जो मैंने लिया है। अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि जहाँ पे कौन कौन से लॉस और किस तरीके से आपको फाइंड आउट करना है, और इसी के ऊपर बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स होंगे जो कन्वेंशनल न्यूमेरिकल है। अगर इसी टॉपिक के ऊपर तो ऐसे ही होगा, दो रेजरवायर्स दिए होंगे, दे आर कनेक्टेड विद द पाइप्स एंड वी हैव टू फाइंड सम पैरामीटर्स आर गिवन एंड सम पैरामीटर्स यू हैव टू फाइंड। तो बेसिक जो तरीका है, बेसिक जो मेथड है, दिस बेसिक मेथड यू हैव टू अप्लाई टू फाइंड द थिंग्स। न्यूमेरिकल दे आर बेस्ड ऑन जो मैंने जहाँ पे चीज़ें की हैं, दिस इज योर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन एंड कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जहाँ पे क्या कहती है, Q1 दिस इज इक्वल टू Q2 दिस इज इक्वल टू Q3 इफ वी आर हैविंग द 3 नंबर ऑफ द पाइप्स, इफ वी आर हैविंग द मोर नंबर ऑफ द पाइप्स तो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन जो है जहाँ पे सेटिस्फाइड होगा, यू अंडरस्टैंड। तो अब देखिए अभी हमने जो कंसेप्ट निकाला H क्या है, डिफरेंस इन द वाटर लेवल ऑफ टू टैंक, दिस इज इक्वल टू HL, राइट। अब ये हमें HL निकालना है कि HL हम अगर हमें निकल जाए, हमें पता हो कि हाउ वी हैव टू फाइंड द लॉसेस इन द पाइप, तो हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाता है। अब HL देखो ये HL लिखते हैं, HL आ जाइए इसके ऊपर। दिस इज योर पाइप नंबर 1। फर्स्ट आई विल कम टू द पाइप नंबर 1। You see here that the pipe number 1, this is connected with the tank here, tank A, ये जहाँ पे टैंक ए से कनेक्टेड है। तो एंट्री लेवल के ऊपर लॉस होगा, जैसे मैंने आपको लॉसेस माइनर लॉसेस पीछे पढ़ाए थे, उसका लेक्चर आप देखिएगा। तो एंट्री लेवल के ऊपर सबसे पहले लॉस हमें जो माइनर लॉस मिलेगा वो क्या मिलेगा, एंट्री लेवल के ऊपर। तो माइनर लॉस एंट्री लेवल के ऊपर क्या होता है, 0.5 B1 square upon 2G. B1 because B1 is the velocity of the fluid in the pipe number 1. तो पहला लॉस आ गया यहाँ पे। अब उसके बाद now the fluid is flowing through the pipe number 1. तो जहाँ पे आपका मेजर लॉस होगा which is called the friction loss. फ्रिक्शन लॉस जहाँ पे हमें मिलेगा, क्योंकि जहाँ से लेके जहाँ तक फ्लूइड इज फ्लोइंग और जहाँ पे जो लॉस होगा दिस इज कॉल्ड द मेजर लॉस, और उसको हम कहते हैं फ्रिक्शन लॉस, राइट। तो मैं सीधा डायरेक्टली लिखता हूँ, मेजर लॉस को हम डोनेट करते हैं बेसिकली HF1 से, और HF से डोनेट करते हैं। उसका फार्मूला है एज पर डार्सी बिस्बैक 4FL B स्क्वायर अपॉन 2GD, where L is the length of the pipe and D is the diameter of the pipe, right। तो इसी तरीके से जहाँ पे HF1 होगा, HF2 होगा, HF3 होगा, तो मैं डायरेक्ट इसको लिखता जाऊँगा। तो अब जहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन लॉस होगा, मेजर लॉस दैट इज 4, F मैं कहता हूँ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऑफ दिस, इस पाइप में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, F1 है। L1 इसका लेंथ है पाइप का L1, और B1 स्क्वायर, जो B1 क्या है, द वेलोसिटी ऑफ द पाइप, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन पाइप नंबर 1 अपॉन 2G and D1 is the diameter, you understand। जहाँ तक खत्म हो गया। अब देखिए जहाँ पे सडन कॉन्ट्रैक्शन हो गया, another pipe is connected with this pipe and this pipe is having the smaller diameter to that। तो सडन कॉन्ट्रैक्शन में जो आपका लॉस होता है वो होगा, आप क्या होगा, पीछे पढ़िए इसे, 0.5 B2 is the velocity of this pipe, that is B
2 square upon 2g. This is your sudden contraction. अब उसके बाद अगेन द फ्लूइड इज फ्लोइंग थ्रू दिस पाइप, जहाँ पे देयर इज नो अदर लॉस बट फ्रिक्शन लॉस, जो मेजर लॉस होगा यहाँ पे फ्रिक्शन लॉस होगा. तो फ्रिक्शन लॉस को हम कैसे डोनेट करेंगे, दैट इज 4F2L2 V2 square upon 2G_D2, right, where L2 is the length of the second pipe, D2 is the diameter of the second pipe, and B2 is the velocity with which the fluid is flowing. You understand? Now, ये complete हो गया. Now the fluid will enter in the pipe number 3. But this pipe number 3 is having the bigger diameter. It is having the larger diameter. So you can say there is a sudden expansion loss होगा. Entry level के ऊपर क्या होगा, sudden expansion loss होगा. तो sudden expansion loss क्या होता है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी इसकी क्या थी, V2 इज द इनिशियल वेलोसिटी थी, और V3 इसकी वेलोसिटी जहाँ से थी, तो ये आ जाएगा आपका V2 माइनस V3 बाई होल स्क्वायर अपॉन 2g. यू अंडरस्टैंड? दिस इज द सडन एक्सपेंशन. अब ये खत्म हो गया. अब दोबारा जहाँ पे जो आपका फ्लो हो रहा है, जहाँ पे क्या होगा, आपका फ्रिक्शन लॉस होगा. तो फ्रिक्शन लॉस लिख लीजिए, इधर लिख देते हैं हम, प्लस 4F3L3 B3 का स्क्वायर अपॉन 2g इंटू D3. ये फ्रिक्शन लॉस हो गया. अब नाउ दिस इज द एग्जिट ऑफ द पाइप, बिकॉज this pipe is connected with the tank B. The water is coming from here and going to this tank B. तो एग्जिट लॉस होगा यहाँ पे. तो एग्जिट लॉस क्या होगा, जहाँ पे आप देख लीजिएगा, दैट इज B3 इज द वेलोसिटी, दैट इज B3 स्क्वायर अपॉन 2g. So these are your losses you will find, and here I have taken all the losses here, whether they are the major losses, whether they are the minor losses, and considering all the losses I have taken here. You understand? So this is the losses, and the sum of the losses, this is equal to H. You understand? Sum of the losses, this is sum of the losses in the pipes. ये जो आपकी pipes they are connected in series है, अगर इसका हम sum करें तो this is equal to the capital H, that is the difference in the elevation of the water tank, difference in the water level of the two tanks. तो जहाँ से हमें डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल इन टू टैंक्स वी कैन कैलकुलेट, जहाँ से हम कर सकते हैं. ये था कि जब मैंने सारे लॉसेस को क्या किया, कंसिडर किया. अगर मैं माइनर लॉसेस, यूजुअली वी अज्यूम द माइनर लॉसेस. Reason is that if the length is very large, you can say if the pipe is very large, the length is very large, so these losses are very considered as a negligible one. So minor losses sometimes we assume minor losses, sometimes we assume कि minor losses are negligible. That depends upon कि आपको जो क्वेश्चन दिया है, न्यूमेरिकल दिया है, उसमें आपको क्या किया, पूछा गया. If they have asked that considering the minor losses, तो तब आपको इस तरीके से पूरी इक्वेशन को यू हैव टू राइट डाउन, राइट. टोटल हेड लॉसेज आर लाइक दिस, अगर आपको माइनर लॉसेज दिया है. अब देखिए जहाँ पे आपका छोटा पाइप था, अगर जहाँ पे क्या है एक्सपेंशन हो जाए तो आप क्या करेंगे, जहाँ पे आप सडन एक्सपेंशन लगाएंगे. ये तो आपको पता है, दिस इज द कॉन्ट्रैक्शन. तो पाइप जरूरी नहीं है कि इसी तरीके का अरेंजमेंट होगा, यू विल गेट द डिफरेंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट, बट अरेंजमेंट्स आर ऑलमोस्ट सिमिलर. आइदर यू गेट द, sometimes you get the contraction of the pipe, sometimes you get the expansion of the pipe. This is the arrangement, right? And they are connected in series. So these are the losses when we are considering the minor losses. But अगर मैं minor losses को consider नहीं करता हूँ, तो loss ही जहाँ पे लिखते हैं, तो minor losses आप assume करें कि आपके minor losses जो है वो क्या है, नहीं है. तो सीधा है ये, तो देन इक्वेशन बिकम्स हाफ बन जाएगी, इक्वेशन इजी हो जाएगी. तो फर्स्ट पाइप में मेजर लॉस ही आप कंसिडर करें, दैट इज़ 4F1L1 V1 स्क्वायर अपॉन 2G_D1 प्लस सेकंड पाइप में मेजर लॉस 4F2L2 V2 स्क्वायर अपॉन 2G
D2 प्लस 4F3L3 B3 स्क्वायर अपॉन 2G D3, राइट। ये अगर इफ आई विल कंसिडर द मेजर लॉसेस ओनली, तो आई विल से दैट दिस implies HL if F1 this is equal to F2 this is equal to F3. I assume here that the coefficient of friction between the pipe number 1, 2 and 3, this is same, that coefficient of friction F1 is equal to F2 is equal to F3, this is equal to F. तो इन सभी F1, F2 और F3 की जगह मैं F पुट कर देता हूँ, राइट। तो ये आ जाएगा आपका 4F इंटू L1 इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2G D1 प्लस 4F L2 P2 स्क्वायर अपॉन 2G D2 और इसी तरीके से प्लस 4F L3 B3 स्क्वायर अपॉन 2G D3, right? So this implies HL 4F upon 2G, आप कॉमन ले लीजिए। The equation becomes L1 B1 square upon D1 plus L2 B2 square upon D2 plus L3 B3 square upon D3. So this is the equation of the head loss. So इसका मतलब ये हुआ कि आपका H जो है, therefore HL is equal to H, तो आपका HV जो है इसके बराबर होगा। You understand? So this is you can say this is the way how we will calculate the numericals. जो numericals होंगे इसी तरीके से होंगे बट लेंथी होंगे। इफ यू से तो मैं न्यूमेरिकल करूँगा, लेकिन वो सारी वैल्यूज़ आपको पुट करके यही मेथड अपनाना पड़ेगा। जब सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आपको डिफरेंस इन द वाटर लेवल, हेड लॉस, टोटल हेड लॉस आप फाइंड आउट करें और वहाँ से आपको वाटर लेवल का डिफरेंस यू विल फाइंड इट। तो चलो इसका देखते हैं, अगर क्वेश्चन भी करना होगा दैट वी विल सी लेटर ऑन। और सेकंड वन अभी हम कंपाउंड पाइप के बारे में, जैसे ये हेडिंग सॉरी इक्विवेलेंट पाइप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यू अंडरस्टैंड? Now come to this second part of this lecture, that is the equivalent pipe. So what do you mean by the equivalent pipe? The equivalent pipe क्या है? So first we will understand, then I will show the diagram also. You can say that when the pipes of the different diameters, जैसे मैंने पीछे पढ़ाया आपको, the pipes of the different diameters and different length and they are connected end to end, right? In series. If that arrangement of the pipe, जो आपको अरेंजमेंट दिया वहाँ पे, if that arrangement of the pipe is being replaced by the pipe of single diameter, uniform diameter, so that is called the equivalent pipe. वो जो पाइप आपकी सिंगल पाइप होगी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द pipes of the compound pipe, equal to the length of the compound pipe. उसका जो लेंथ होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? कंपाउंड पाइप। कंपाउंड पाइप मीन्स द पाइप्स ऑफ द डिफरेंट डायमीटर्स, जिनको हम रिप्लेस कर रहे हैं विद वन डायमीटर ऑफ द सिंगल डायमीटर ऑफ द पाइप। तो एक तो पहला कंडीशन उसमें क्या है कि लेंथ सेम होनी चाहिए। जैसे देखिए, ये आपका पाइप है, कंपाउंड पाइप, राइट, इस तरीके से। तो ये आपकी कंपाउंड पाइप है, राइट। तो वाटर इज फ्लोइंग लाइक हियर। तो इसका जो
L1 लेंथ है, D1 डायमीटर है, ये तो भी आपने पीछे पढ़ा. दिस इज L2, दिस इज L2 D2. सेकंड पाइप L2 D2, डायमीटर D2 एंड length is L2, and this is L3 and D3. So this arrangement, you can say the pipes are connected in series because they are connected end to end and they are having the different length and the different diameter. If this arrangement जो आपको दिया है, तो इसका जो लेंथ होगा, टोटल लेंथ जो इस पाइप का होगा, टोटल लेंथ, ये जो आपका एक अरेंजमेंट है, ये जो पाइपलाइन है, अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूं तो टोटल लेंथ आपका था L1 प्लस L2 प्लस L3, राइट. तो टोटल लेंथ आपका इसका कितना हो गया? L1 प्लस L2 प्लस L3. यू अंडरस्टैंड? नाउ इफ आई विल रिप्लेस दिस arrangement of the different compound pipe, you can say this arrangement of the compound pipe with a single pipe of uniform diameter. तो कहने का मतलब है सिंगल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर मीन्स एक पाइप आप इसी से आप ये जहां पे देखिए दिस इज योर सिंगल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, दिस इज योर सिंगल पाइप ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर. तो इसका जो लेंथ होगा, जो इसका डायमीटर है, सिंगल है, D is a diameter, single diameter. Here you will see that you are finding here these pipes are having the different diameter, but I am replacing this arrangement of the pipe with a single pipe diameter. You understand? Its diameter is D. उसका डायमीटर क्या है? D है, बट इनका डायमीटर D1, D2, D3 था. D इज द अननोन, वी डोंट नो, वी हैव टू फाइंड आउट कि दिस D जो डायमीटर है, दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप, राइट. D ये जो डायमीटर है, दिस इज द यूनिफॉर्म डायमीटर ऑफ द पाइप. और जो यूनिफॉर्म डायमीटर, ये जो आपका यूनिफॉर्म डायमीटर D ऑफ सिंगल पाइप, जिसके साथ हम रिप्लेस कर रहे हैं सिंगल पाइप, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप, राइट. तो दैट इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप. यू अंडरस्टैंड? ये समझ आ गया आपको कि ये जो अरेंजमेंट है कंपाउंड पाइप का, इफ वी विल रिप्लेस दिस अरेंजमेंट बिकॉज वी आर नॉट, ये जो डिफरेंट डायमीटर्स हैं, समटाइम्स वी विल नॉट गेट दैट डायमीटर. हमें जो इस डायमीटर की रिक्वायरमेंट होती है, वी विल नॉट गेट दैट डायमीटर. सो देन व्हाट वी विल डू, वी जस्ट टेक ए सिंगल पाइप. द लेंथ ऑफ द पाइप, जो लेंथ ऑफ द पाइप होगा, इक्विवेलेंट जो लेंथ होगी आपकी, इक्विवेलेंट ऐसे लिख लो, लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप जो होनी चाहिए, ये चीज़ें याद रखनी है. लेंथ ऑफ जो आप इक्विवेलेंट पाइप मीन्स सिंगल पाइप विच यू आर रिप्लेसिंग, because you are replacing this arrangement of the compound pipe with a single pipe, and that single pipe is called the equivalent pipe. So length of the equivalent pipe, this is denoted by L. ये किसके साथ डिनोट किया है? This is denoted by L, right? And this L, that should be equal to L1 plus L2 plus L3. इसका जो लेंथ होगा वो क्या होना चाहिए? सम ऑफ द लेंथ. जितना इसका लेंथ बनता है कंपाउंड पाइप का, उतनी ही लेंथ की हमने पाइप लेनी है. यू अंडरस्टैंड? सम ऑफ द लेंथ. सो L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस
L3। अच्छा, एक और कंडीशन जो जहाँ पे हमें लेना है वो क्या होनी चाहिए, हमारी वो एक और कंडीशन आपकी होनी चाहिए, द हेड लॉसेस, टोटल हेड लॉस, द टोटल हेड लॉस इन द कंपाउंड पाइप, दिस इज द कंडीशन, टोटल हेड लॉस in the total head loss in the compound pipe, जितना हेड लॉस, ये जो आपकी कंपाउंड पाइप्स हैं, जो आपका अरेंजमेंट सीरीज में है, डिफरेंट डायमीटर ऑफ द पाइप, जितना इसका हेड लॉस आएगा, टोटल हेड लॉस इन द कंपाउंड पाइप, दिस शुड बी, और यू कैन से equal to the head loss in the equivalent pipe, right? So this is equal to loss in head of equivalent pipe, you understand? समझ आ गया? तो टोटल हेड लॉस इन द कंपाउंड पाइप, और यू कैन से टोटल हेड लॉस इन द इक्विवेलेंट पाइप, दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल हेड लॉस इन द कंपाउंड पाइप। जो कंपाउंड पाइप है उसको हमने रिप्लेस किया है इक्विवेलेंट पाइप से, उसका जो हेड लॉस है जिस पाइप से हमने रिप्लेस किया है, उस पाइप के बीच में जब फ्लूइड जो है फ्लो करेगा और जो हेड लॉस उसमें हमें मिलेगा, दैट हेड लॉस दैट शुड बी इक्वल टू द हेड लॉस विच वी गेट इन द कंपाउंड पाइप, यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज अनदर कंडीशन। समझ आ गया? यू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर कंपाउंड पाइप? कंपाउंड पाइप वी कैन से दैट व्हेन द equivalent pipe means when we replace the arrangement of the compound pipes which are in series, right, with a single diameter pipe, the length of the pipe is same to the total length of the compound pipe. One condition, length of that equivalent pipe which we are taking instead of the compound pipe, उसका जो लेंथ होना चाहिए, दैट लेंथ दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल लेंथ ऑफ द कंपाउंड पाइप। मीन्स अगर ये इसका लेंथ L1 है, ये आपका L2 है और ये आपका L3 है, तो इसका जो टोटल लेंथ होगा दैट शुड बी इक्वल टू द L1 प्लस L2 L3। एक बात ये होगी कि जो हमें इक्विवेलेंट पाइप लेना है, जितना उसकी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई की हमें पाइप लेनी है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग हियर, if we will calculate the head losses in the compound pipe and that compound pipe has to be replaced by the equivalent pipe, जो head loss we will get in the compound pipe that should be equal to the head loss in the equivalent pipe, you understand? तो हेड लॉस वाली कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होती है कि हेड लॉस इन द कंपाउंड पाइप दैट इज इक्वल टू द हेड लॉस इन द इक्विवेलेंट पाइप। अब जहाँ से हमें नाउ द थिंग्स इज कि हमें ये डिज़ाइन करना है कि ये डायामीटर D इक्विवेलेंट साइज जो पाइप का है वो हमें डिज़ाइन करना है कि कितना डायामीटर हम रखें। बिकॉज लेंथ तो सेम है, वो मिल जाएगी, पर डायामीटर हमें कितना रखें, दैट वी हैव टू डिज़ाइन। तो उसके लिए हमें क्या है कि डेरिवेशन करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड द ड्यूपेट इक्वेशन। वो डेरिवेशन करते हैं और उससे आपको इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप यू कैन कैलकुलेट, यू अंडरस्टैंड? तो लेट अस स्टार्ट द डेरिवेशन नाउ। तो जी ठीक है, यहाँ से अब देखिए ये अरेंजमेंट आपको दिया था, ये आपने नोट कर लिया होगा। और अब इसका देखेंगे हाउ वी विल कैलकुलेट द डायमीटर
of the equivalent size of the pipe when the compound pipe of the different diameters and the different lengths are given to you. Instead of that we are using the equivalent pipe. तो उसका हम डायमीटर को डिज़ाइन करना है तो पर कैसे करेंगे देखिए. सो जैसे L1 आपको पता है L1 लेंथ ऑफ पाइप 1, ये कंपाउंड पाइप की बात कर रहा हूँ मैंने डायग्राम जो है मिटा दिया बिकॉज आई नीड सम स्पेस टू राइट डाउन हेयर. और D1 आपका हो गया डायमीटर ऑफ 1, राइट. इसी तरीके से L2 लेंथ ऑफ पाइप सेकंड and D2 diameter of second. You understand? L3 length of pipe 3 and D3 is the diameter of 3. You understand? L1, L2, L3, this is the different length of the compound pipes or different length of the pipes which are connected in series, and D1, D2, D3 is the diameter. तो इसका मतलब है कि आपका टोटल L क्या होगा, L is equal to L1 plus L2 plus L3. So total L is this one. And this L जो साइज आपका है दैट इज द साइज और लेंथ ऑफ द इक्विवेलेंट पाइप. यू अंडरस्टैंड. तो अगर मैं जो डायमीटर्स 3 पाइप्स जो मैंने कनेक्ट किया था पाइप नंबर 1, 2 and 3, यू हैव ड्रॉन द डायग्राम. आई एम जस्ट ओनली कंसिडरिंग द मेजर लॉसेस हेयर. माइनर लॉस को मैं कंसिडर नहीं करूँगा. तो देयरफॉर टोटल हेड लॉस क्या होगा, टोटल हेड loss, that is H. This is equal to HF1 plus HF2 plus HF3, right? Major loss को इसी से डिनोट करते हैं HF1 plus HF2. HF1 means major loss in pipe number 1, HF2 major loss in pipe number 2, and HF3 major loss in pipe number 3. We are not considering here the minor losses. तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन आपकी लिख दूँ. पाइप नंबर 1 का मेजर लॉस का क्या इक्वेशन आएगा, H का 4F1 L1 V1 स्क्वायर अपॉन 2G D1, where L1 is the length of the pipe number 1, V1 is the velocity of the fluid which is flowing in the pipe number 1, and D1 is the diameter of the pipe number 1. You understand? This is the major loss. Minor loss, remember this thing, I am not considering the minor loss. तो इसलिए minor loss को हम जहाँ पे we are not taking here. Plus 4F2 L2 V2 square upon 2G into D2. You understand? प्लस जहाँ पे कर ले 4F3 L3 फॉर पाइप नंबर 3 मेजर लॉस 2G D3, right? This is total loss 4FL1 4FF2. अच्छा F1, F2 और F3 जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, वी विल एज्यूम दैट दीज कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आर इक्वल. इसलिए हम F1, F2 और F3 को हम F ही कंसिडर करेंगे. यू अंडरस्टैंड. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पाइप नंबर 1, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पाइप नंबर 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर पाइप नंबर 3, दैट इज सेम, इक्वल. So I am not writing F1, F2, F3 here. I am just writing here F. You understand? तो ये आपका ये आ गया एक इक्वेशन.
अब देखिए, दिस इज B1, दिस इज B2 एंड दिस इज B3. नाउ वी विल यूज द कंटिन्यूटी इक्वेशन. हम क्या करें, कंटिन्यूटी इक्वेशंस को हम यूज करते हैं और जहां से हम अच्छा एक चीज और आपको बताया था मैंने, जो डिस्चार्ज इन द कंपाउंड पाइप होगा. नाउ डाउट दैट दीज पाइप्स आर हैविंग द डिफरेंट लेंथ, they are having the different diameters, but the discharge that should be same, right? So I will say that pipe 1 का जो discharge था, this is Q1. I will say this is A1 into V1. Pipe number 1 में discharge. Q2 क्या था, A2 B2, और जो आपका Q3 था, this is equal to A3 and B3. So from continuity equation, A1 B1, this is equal to A2 V2, this is equal to A3 B3. You understand? तो आपका जो B1 है, जहाँ पे B1, this is equal to Q1 upon A1, right? तो B1 की वैल्यू क्या आएगी, Q1 upon A1, or you can say, तो एरिया क्या होगा, पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर, और यू कैन से B1 so this is equal to Q1 पाई बाई 4 इंटू D1 स्क्वायर. 4 ऊपर चला गया तो ये आपका आ गया 4 Q1 पाई D1 स्क्वायर. तो ये आपकी आ गई V1, राइट. इसी तरीके से आपका B2 का वैल्यू आ जाएगा, B2 आ जाएगा 4 Q2 पाई D2 square, and likewise you will get the value from here, B3, that is 4 Q3 upon pi D3 का square. You understand? So these three values, B1, B2 and B3 you will get. Now substitute these values here. अब आप B1, B2 और B3 का वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर लें. सो देयरफॉर H इज इक्वल टू, आप लिखें 4FL1 इंटू B1 की जगह क्या आएगा, B1 की जगह आएगा आपका 4, जो सीधा लिख लें 16 Q1 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू D1 4. यू अंडरस्टैंड? स्क्वायर कर दिया हमने, अपॉन 2G D1. यू अंडरस्टैंड? ये आपकी वैल्यू आएगी इसमें. इसी तरीके से आप दूसरी इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट कर दो. राइट, दूसरी इक्वेशन को कर लो, क्या आएगा 4FL2, व्हाट इज योर V2, दैट इज 16 Q2 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर D2 4, राइट, अपॉन 2G D2. You understand? Plus
फिर ऐड कर लो 4FL3 इंटू 16Q3 स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू D3 4 into 2G into D3, right? So this is इक्वेशन आ गया आपका H। अब देखिए इसमें एज इन कंपाउंड पाइप जो आपका था, कंपाउंड पाइप में जैसे आपको मैंने बताया था द व्हेन द पाइप्स आर इन सीरीज, यहाँ पे लिख लो इन कंपाउंड, यहाँ पे लिख लेते हैं इन कंपाउंड पाइप, जो आपका डिस्चार्ज होगा Q1 दिस इज इक्वल टू Q2, दिस इज इक्वल टू Q3 एंड दिस इज इक्वल टू Q। जो डिस्चार्ज है वो क्या होगा, सेम होगा। इसलिए ये जो जहाँ पे Q1 स्क्वायर लिखा है, Q2 स्क्वायर लिखा है, Q3 स्क्वायर लिखा है, तो इट मीन्स दैट दे आर सेम। तो 1 2 3 लिखने का जरूरत नहीं है, जहाँ पे आप 16Q स्क्वायर लिख दो, Q2 भी जहाँ से कम कैंसिल कर दो एंड जहाँ से कैंसिल कर दो। यू अंडरस्टैंड दिस वन? बिकॉज व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज द डिस्चार्ज in each and every pipe of the different diameter and the length that is same। जब भी पीछे मैंने पढ़ाया आपको, राइट। सो Q1 Q2 और Q3 की जगह मैंने जहाँ पे Q लिख दिया। आई कैन राइट इट इन द बिगिनिंग आल्सो, but I want to tell you, show you that how we have taken Q here, and this is the condition when the pipes are connected in series, that discharge in each and every pipe of the different diameter, different length, which are connected end to end in series, that makes as a compound pipe also। तो वो आपका डिस्चार्ज क्या होगा, सेम होगा, तो इसलिए ये मैंने सेम कर लिया। यू अंडरस्टैंड? तो H आपका जो होगा हेड लॉस, अब देखिए इसमें आप हेड लॉस जो है कॉमन ले लीजिए। व्हाट यू विल कम गेट कॉमन हियर, जस्ट सी हियर, सो कॉमन जहाँ पे देखिएगा एक आएगा 4F इंटू 16Q स्क्वायर, ये सारा है 4F 16Q स्क्वायर अपॉन 2G भी कॉमन आएगा, दैट इज 2G इंटू पाई स्क्वायर, राइट। 2G इंटू पाई स्क्वायर। तो ये आपका जो इक्वेशन आएगा बीच में बचेगा यहाँ पे L1 अपॉन D1। अब देखिए D1 रेज़ टू पावर 4 इंटू D1, दिस इज बिकम्स एट D1 रेज़ टू पावर 5 प्लस L2 अपॉन D2 रेज़ टू पावर 5। ये D2 ऊपर चला जाएगा, ये कॉमन आ गया, और इसी तरीके से प्लस L3 अपॉन D3 रेज़ टू पावर 5, राइट। तो ये आपका हेड लॉस आ गया इन कंपाउंड पाइप। ये आपकी जो वैल्यू है ये हेड लॉस की आ गई इन द कंपाउंड पाइप। यू अंडरस्टैंड? नो, उसको मिटा दीजिए। Now we will calculate the head loss in the equivalent pipe. You understand?
तो हेड लॉस इन right, so head loss in equivalent pipe, because this is a pipe is having the single diameter, right? तो head loss in equivalent pipe क्या होगा? H. 4 major loss लेंगे हम. Equivalent pipe, what is the equivalent pipe? I have taken the pipe of the uniform diameter and the length of the pipe that is equal to the length of the compound pipes. You understand? So friction factor, जो coefficient of friction, I will say take the same coefficient of friction. तो major loss in the equivalent pipe क्या होगा? That is 4 into F L. L उसका क्या है? That is the total length of the pipe. L into B. If I say B is the velocity in the pipe, B square upon 2 into G into D. D is the diameter, uniform diameter of the pipe that I am denoting this by B, D. अब देखिए B इसमें क्या आएगा? B is equal to, if I say discharge is Q and A is the area of the equivalent pipe, cross section area of the equivalent pipe, तो मैं कह सकता हूँ कि B is equal to Q क्या है? Q रहने दे ऐसे, and this is pi by 4 into D square. Therefore B is equal to 4Q, 4 ऊपर ले जाए, and this is pi D square. You understand? तो B क्या वैल्यू आपको ये मिल गया? That is the mean velocity of the fluid which is flowing through the pipe. If Q is the discharge of the pipe, तो क्या होगा? अब इसमें देखिए, therefore this implies H is equal to 4, F ऐसे ही रहेगा, L भी ऐसे ही रहेगा. B की जगह में ये पुट कर दूं यहाँ पे B स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? 16Q स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर इंटू D4, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा. तो डिवाइडेड बाई क्या था? 2 इंटू G इंटू D, राइट? 2 इंटू G इंटू D. Therefore H is equal to, अब क्या क्या यहां पे कॉमन आएगा? देखिए, फोर एफ, इसको इस तरीके से लिख लीजिए, जहां पे कॉमन क्या लेना है? एक ही है. 4F इंटू 16Q स्क्वायर 2G इंटू पाई स्क्वायर. तो देखिए बीच में क्या आएगा? क्या आ जाएगा? L अपॉन D5. ये मैंने सारा बार ले लिया यहाँ पे. 4F, हाँ 4F 16Q स्क्वायर 2G पाई स्क्वायर. तो बीच में बचा L, जहाँ पे D4 इंटू D5. यू अंडरस्टैंड? तो ये आपका हेड लॉस आ गया इक्विवेलेंट पाइप का. सो दिस इज द हेड लॉस ऑफ इक्विवेलेंट पाइप. एंड हमने इसमें कंडीशन पढ़ा था जब स्टार्टिंग में मैं इसकी डेफिनेशन दे रहा था, दैट हेड लॉस इन द इक्विवेलेंट पाइप दैट शुड बी इक्वल टू द हेड लॉस इन द कंपाउंड पाइप. यू अंडरस्टैंड? जो हेड लॉस हो इक्विवेलेंट पाइप में, वो हेड लॉस किसके बराबर होना चाहिए? कंपाउंड पाइप के बराबर होना चाहिए. तो इसका मतलब है ये जो आपका इक्वेशन 1 और 2 है, वी कैन इक्वेट दीज टू इक्वेशन. हेड लॉस क्योंकि दोनों में बराबर है, तो इक्वेशंस को हम क्या कर सकते हैं?
इक्वेट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को इक्वेट कर देते हैं, जहाँ से इसको मिटा देते हैं, ये इक्वेशन वाला पार्ट रखते हैं नीचे। राइट, सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 इक्वेशन को क्या करें आप, इक्वेट करें तो ये आपका आएगा 4f इंटू 16q स्क्वायर पान 2g पाई स्क्वायर L अपॉन d5, दिस इज इक्वल टू जे वाला 4f इंटू 16q स्क्वायर 2g पाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ये है L1 d15 प्लस L2 d25 राइट जाएगा। सो दिस वन और दिस वन ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। सो नाउ यू लेफ्ट विद द इक्वेशन दिस L अपॉन d5, दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन d15 प्लस L2 अपॉन d25 प्लस L3 upon d35. So this equation you will get, and this equation you can say this is the Dupuit equation. जहाँ पे देखिए आपको पाइप्स दिए हैं डिफरेंट डायमीटर्स का, L1 L2 सॉरी डिफरेंट लेंथ का L1 L2 L3 D1 D2 D3 डायमीटर। तो इक्विवेलेंट साइज अगर आपने डिज़ाइन करना है इक्विवेलेंट पाइप का, तो L आप जो लेंगे, ये जहाँ पे याद रखिएगा, तो जो L अपॉन D5 है जहाँ पे, तो L क्या है आपका, L इज इक्वल टू L1 प्लस L2 प्लस L3, यू अंडरस्टैंड। तो L क्या है, तो D इज द इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप। तो ये वैल्यू आप पुट करें, जो भी आपको न्यूमेरिकल दिया होगा उसमें लेंथ दिया होगा पाइप्स का, डायमीटर डिफरेंट डायमीटर आपको पाइप का दिया होगा, और उस पाइप को आपने रिप्लेस करना है इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप से जिसका डायमीटर आपका डिफरेंट होगा, उसको आपने फाइंड आउट करना है। तो ये आप इक्वेशन लगाएंगे तो आपका डायमीटर निकल जाएगा। Right? So this is the Dupuit this is called the Dupuit's equation। तो आपको जहाँ पे आ गया कि हाउ वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप, तो एक बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल इसका देख लेते हैं कि आपको एक किस तरीके से आपको निकालना है, उसको हम कर लेते हैं। राइट, सो वेरी सिंपल प्रॉब्लम, क्योंकि जो मैंने आपको जब कंसेप्ट इसका इक्वेशंस को ड्राइव किया था, कंसेप्ट समझाया था, तो उसी में ही सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो गया था। न्यूमेरिकल्स जस्ट इट इज़ अ फॉर्मेलिटी टू डू, अदरवाइज वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर थी। इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आपको लिखा होगा, इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप का न्यूमेरिकल आएगा तो 3 पाइप्स ऑफ द लेंथ, 3 पाइप्स ऑफ द लेंथ 800 मीटर 500 मीटर एंड 400 मीटर्स, और उनका डाया भी दिया है, दैट इज़ 500 mm, 400 mm and 300 mm are connected in series, right? तो ये क्या है कि 3 पाइप्स हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं।
तो आप कह सकते हैं कि ये एक पाइप होगी, मैं कहता हूँ इसका लेंथ कितना है 800 मीटर एंड 5, तो दूसरा डायमीटर कम हो गया 400 इस तरीके से। ये आपका 400 मीटर है, इसकी लेंथ कम है, इसका लेंथ आपका 500 है। एंड नेक्स्ट इज लेंथ कितना है 400 मीटर और डायमीटर 300 मीटर। तो डायमीटर ये इसको थोड़ा सा आगे ले जाओ आप आपका 300 मीटर। इस तरीके से ये एक अरेंजमेंट है पाइप का जो आपको दिया है, राइट। तो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द पाइप यू कैन से दिस इज द कंपाउंड पाइप आल्सो। तो इसमें जो L1 है, इसका L1 आपको दिया है दैट इज 800 मीटर, और जो इसका डायमीटर है दैट इज 0.5 मीटर, बिकॉज इट इज गिवन इन mm 500 mm, दिस इज 0.5 मीटर। आप कह सकते हैं ये आपकी पाइप नंबर 1 है। इसी तरीके से पाइप नंबर 2 विच इज हैविंग द स्मॉलर डायमीटर, कितना 400 मीटर, और लेंथ इसका कितना है दैट इज L2 500 मीटर है, और D2 कितना है इसका डायमीटर दैट इज 400 mm, दैट इज 0.4 मीटर। इसी तरीके से आपका L3 है, ये दिया है इसका लेंथ 400 मीटर एंड D3 दिस इज इक्वल टू 0.3 मीटर। तो इसका मतलब आपको L1, L2, L3 दिया है। Now this compound, this arrangement of the compound pipe, you can say, or this compound pipe or the pipe which are connected in series, they are being replaced by the single pipe of length 1700 मीटर। अब देखिए मैंने जैसे आपको बोला था कि लेंथ जो कंपाउंड पाइप की होगी और जो कंपाउंड पाइप को हम रिप्लेस करेंगे अनदर सिंगल पाइप, उन दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए। तो जहाँ पे दिया 1700 मीटर, तो ये चेक कर लेते हैं जहाँ पे क्या ये 1700 मीटर आता है। 800 plus 500 1300 and this is 400, that is 1700 meter. So you can say जो L equivalent length है this is the sum of the total length। तो एक इस तरीके से एक डायमीटर ऑफ द पाइप है, सिंगल डायमीटर ऑफ द पाइप। डायमीटर हमें पाइप का मालूम नहीं है, वो हमें निकालना है, लेकिन लेंथ जो इसकी है, जो इसका L है, L जो इसका लेंथ है L, this is the length of pipe, वो कितना है this is equal to 1700 मीटर। मीन्स L is equal to L1 plus L2 plus L3, और अगर हम इसको सेपरेटली भी ऐड करें we will get this one 800 plus 500 plus 400, this is equal to 1700 meter, right? So this is the equivalent pipe। साइज हमें फाइंड आउट करना है, इसका डायामीटर फाइंड आउट करना है, राइट। तो क्या करेंगे, जो ड्यूपेट इक्वेशन आपने ड्राइव किया है, जस्ट सी द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट इक्वेशन। अगर आपको वो इक्वेशन रिमेंबर करते हैं और जो जिस मेथड से जिस तरीके से हमने उसको ड्राइव किया है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सॉल्यूशन करने के लिए आप लिखिए, ये फार्मूला ड्यूपेट इक्वेशन क्या थी, L अपॉन D⁵5 दिस इज इक्वल टू L1 अपॉन D⁵5 प्लस L2 अपॉन D⁵5 प्लस L3 D⁵5। सो ये आपका था L1 अपॉन D⁵5 L2 D⁵5 प्लस L3 D⁵5, राइट। तो सब्स्टिट्यूट कर दें सारी चीज़ें यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये आपको आएगा 1700, L क्या है 1700, D⁵5 दिस इज 800 0.5 इंटू 5 प्लस 500 0.4 इंटू 5
प्लस 300 0.3 इंटू 5, राइट। तो इसको सॉल्व करें और डी की वैल्यू यहाँ से निकाल लें, यू अंडरस्टैंड। तो सॉल्व करने के बाद जो डी का वैल्यू आएगा इसका, तो डी इज इक्वल टू 371.8 mm। तो सॉल्व करें एंड यू विल कैलकुलेट डी। सो देयरफॉर डी जो आएगा दैट इज 371.8 mm। तो जहाँ पे देखिएगा जो साइज ऑफ द इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ द पाइप है ये डिफरेंट है एज कंपेयर्ड द साइज ऑफ द डिफरेंट लेंथ ऑफ द पाइप विच आर गिवन इन द कंपाउंड पाइप हेयर। तो इसका जो इक्विवेलेंट साइज आएगा दैट इज 371.8 mm। इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा एंड यू विल फाइंड दैट। सो माई ये एक तरीका है कि हाउ वी विल कैलकुलेट द इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप हेयर। तो किस तरीके से हम इक्विवेलेंट साइज ऑफ द पाइप निकाल लेंगे। और जो पहले पाइप इन सीरीज आपको दिया था उसमें भी अगर न्यूमेरिकल्स हैं तो सेम सारी चीज़ें दिया होगा, और उसमें सिर्फ आपको ये चीज़ रखनी है कि अगर इफ़ दे आर गिवन दैट माइनर लॉसेस को नेगलेक्ट करो तो आपने माइनर लॉसेस उसमें नहीं लेने हैं, ओनली यू हैव टू टेक द मेजर लॉसेस देयर। और मेजर लॉसेस का आपको फार्मूला पता है दैट इज़ 4FL/2G डी, राइट। बट जो वेलोसिटी होगी B that is V1 velocity is for the pipe number 1 which is having the different diameter, B2 is the velocity for the pipe number 2 and B3 is the velocity for the pipe number 3। तो different velocities आपकी होंगी V1 B2 B3। तो उसको आप क्या करेंगे कि B1 कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा के आप B1 की वेलोसिटी या B2 की वेलोसिटी B3 की वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ वन वेलोसिटी में कन्वर्ट करें, उसमें पुट करने के बाद आपको एलिवेशन का उसका हेड लॉस, टोटल हेड लॉस दिया होगा, वहाँ से यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी B1। तो अगर आपको आगे बोला कि डिस्चार्ज कितना है दैट यू कैन कैलकुलेट बाई A1 B1। तो अगर आप चाहते हैं कि उस क्वेश्चन को भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं तो लिख लेते हैं ये, और उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा पूरा सॉल्व तो नहीं करूँगा क्योंकि मैथमेटिकली बहुत टाइम लगेगा, बट आई विल गिव यू द आइडिया। सॉल्व आप कीजिएगा, आपको आइडिया दे दूंगा कि किस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हमें चलाना है, यू अंडरस्टैंड। तो देखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। सो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन इज देयर दैट द क्वेश्चन इज द डिफरेंस ऑफ द वाटर लेवल इन द टू टैंक्स is given as that is what 12 meter. So it means that the head is given H meter, and these two tanks are connected by the pipes, are connected by the compound pipe, or the pipe of the different diameters and different length in series, right? We have to find the rate of flow of water. तो हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर निकालना है। दैट इज वी हैव टू फाइंड डिस्चार्ज। हमें क्या निकालना है, जहाँ पे डिस्चार्ज निकालना है। देखिए जो आपका डिस्चार्ज है, जहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं A1 B1 A2 B2 A3 B3। अब A1 A2 और A3 तो आपको कैलकुलेट हो जाएगा, जस्ट अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, बाकी आप खुद करें इसको। A1 B1 and A1 A2 and A3 that you will calculate because by using this diameter D1। तो अगर मैं कहूँ A1 कितना होगा, this is equal to pi/4 into D1 square, right? Likewise A2 pi/4 into D2 square and A3 pi/4 into D3 square, राइट। A3 होगा आपका A3 pi/4 इंटू D3 स्क्वायर, राइट। तो A1 A2 तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, और जो डिस्चार्ज है द कंपाउंड पाइप वो आप ये फार्मूला लगा के भी निकाल सकते हैं कि O इज इक्वल टू A1 B1। A1 आपके पास है, इसका मतलब आपको B1 निकालना है, राइट। A2 B2 करके भी निकाल सकते हैं, B3 करके भी निकाल सकते हैं। तो मैं ये A1 B1 करके निकालूंगा। तो इसका मतलब है कि हमारा जो मेन फोकस है
दैट वी हैव टू कैलकुलेट द वेलोसिटी। हमें वेलोसिटी B1 और B2 और B3 की वेलोसिटी, किसी एक वेलोसिटी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। यू अंडरस्टैंड। अब ये जो हमें ये दिया है, हेड इज ऑलरेडी गिवन, टोटल हेड लॉस और डिफरेंस इन द वाटर लेवल दैट इज हेड लॉस, दिस इज गिवन एज, और जे किसके बराबर होता है, H इज इक्वल टू HL, यही होता है, H इज इक्वल टू HL। तो ये आपकी इक्वेशन बनेगी जहाँ पे 12 इज इक्वल टू, अब इनके लॉसेस हमें कैलकुलेट करने हैं। तो लॉसेस तो आपको पता है किस तरीके से होंगे। सबसे पहले कौन सा लॉस होगा, एंट्री लॉस होगा। तो हम HL को लिख लेते हैं पहले। HL क्या है भाई, 0.5 इंटू V1 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 4F1 L1 V1 स्क्वायर अपॉन 2G D1 प्लस, अब इस पाइप में आ जाइए, सडन कंट्रैक्शन है, दैट इज 0.4 V2 स्क्वायर अपॉन 2G प्लस 4FL2 V2 स्क्वायर अपॉन 2G, राइट, ये भी हो गया। अब इसके बाद सडन एक्सपेंशन है, तो सडन एक्सपेंशन में भी आप लिख लीजिएगा क्या है, B2 माइनस B3 का होल स्क्वायर अपॉन 2G प्लस मेजर लॉस आ जाएगा इसमें 4F3L3 B3 स्क्वायर अपॉन 2G D, ये D1 था, दिस इज योर D2। हाँ क्या है, राइट। तो इसी तरीके से क्या करेंगे, आप सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो आपको रखना है ध्यान में, जहाँ पे हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, और कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन का इस्तेमाल इसलिए करेंगे क्योंकि जहाँ पे देखिए B1 की वैल्यू है, ये B2 की वैल्यू है, B3 की भी वैल्यू यहाँ पे है, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट B2 एंड B3 इन टर्म्स ऑफ B1। वो क्यों, क्योंकि जहाँ जहाँ भी आपको B2 की वैल्यू है, जहाँ B3 की वैल्यू है, इफ़ यू विल कन्वर्ट B2 एंड B3 इन टर्म्स ऑफ B1, और जहाँ पे अगर आप सब्स्टिट्यूट करें, क्योंकि बाकी तो चीज़ें सारी आपके पास है, 2 की वैल्यू है 2G 9.81, डायमीटर आपको दिया है, L1 दिया है, F1 दिया है, ये दिया है, ओनली यू आर हैविंग द डिफरेंट वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी। और अगर मैं वेलोसिटी की वैल्यू को, जैसे ये B1 B2 एंड B3 है, आई विल राइट डाउन और आई विल कन्वर्ट B2 एंड B3 इन टर्म्स ऑफ B1। अगर मैं B2 B3 को इन टर्म्स ऑफ B1 में कन्वर्ट कर देता हूँ, तो क्या होगा, हमें जब हम सॉल्व करेंगे इस इक्वेशन को, क्योंकि दिस इक्वेशन इज इक्वल टू H, और H की वैल्यू हमारे पास दिया है, दिस इज 12, तो हमें क्या होगा, इन दोनों इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे 12 इज इक्वल टू दिस मच, और B2 की जगह आपने B1 को कन्वर्ट करना है। वो कैसे करना है वो देख लीजिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशंस हम यूज़ करेंगे। देखिए कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, एज पर द कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है हमारा, continuity equation from continuity equation क्या है, A1 B1 this is equal to A2 B2 is equal to A3 B3, right? This is the continuity equation. अब देखिए, or you can say A1 B1 this is equal to A2 B2, therefore B2 किसके बराबर आएगा, B2 this is equal to A1 upon A2 into B1, राइट। तो B2 की वैल्यू हमने कन्वर्ट कर दिया इन टर्म्स ऑफ A1,
तो A1 तो हमारे पास है π/4 इंटू D1 स्क्वायर। तो D1 क्या था हमारा, D1 हमारा था यहाँ पे कुछ यस 0.3। तो ये आपका आ जाएगा, अगर पूरा लिख लो आप, π/4 इंटू D1 स्क्वायर अपान π/4 इंटू D2 स्क्वायर इंटू B1। जे और जे आपका कैंसिल हो जाएगा। तो B2 की वैल्यू आएगी यहाँ पे D1, व्हाट इज योर D1 0.3 एंड व्हाट इज योर D2 दैट इज 0.2 का होल स्क्वायर इंटू B1। और इसको अगर आप सॉल्व करें तो B2 की वैल्यू आपको सॉल्व करने के बाद मिलेगी, दिस इज इक्वल टू 2.225 V1। तो देयरफॉर B2 की वैल्यू अपने कर ली, B2 इज इक्वल टू 2.225 V1। यू अंडरस्टैंड। तो ये B2 की वैल्यू आपकी आ गई। इसी तरीके से आप B3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ले, इसी तरीके से आप B3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ले। तो सेम लिखें, यहाँ पे क्या लिखें, A1 B1 दिस इज इक्वल टू A3 B3। देयरफॉर B3 इज इक्वल टू A1 अपॉन A3 इंटू B1। दिस इम्प्लाइज V3 इज इक्वल टू π/4 D1 वो कैंसिल हो जाएगा। दैट इज D1 क्या था, व्हाट इज योर D1, दिस इज 0.3 एंड जैसे 0.4 का होल स्क्वायर इंटू B1। तो ये आपको इस तरीके से आपने देखा B2 की वैल्यू एंड B3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B1 वी हैव कैलकुलेटेड 0.5625 V1। सो दिस इज इक्वल टू 0.5625 V1। अब समझ आ गया। तो B2 की भी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B1 वी हैव कैलकुलेटेड, B3 की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। जहाँ जहाँ पर B1 है उसको वैसे ही रहने दें, जहाँ पर B1 है ये तो वैसे ही रहेगा, बाकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाए। और जहाँ पर भी आपको B2 आएगा, इंस्टेड ऑफ B2 यू विल पुट दिस वन 2.225 इंटू V1 हियर। B2 की जगह इन टर्म्स ऑफ V1 वैल्यू पुट करें। इसी तरीके से B2 और B3 की जगह इन टर्म्स ऑफ जो वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, जैसे B3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 दिस इज 0.562 V1। इसी तरीके से B2 की वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, दिस इज 2.225 V1। तो ये क्या करें, जहाँ पे आप सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपको ये जो इक्वेशन होगी इसको आप इक्वेट करें हेड के साथ, दिस इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू दिस वन। ये आपकी इक्वेशन बनेगी, ठीक है, बिकॉज H इज इक्वल टू HL। तो जब आप इक्वेशन को करेंगे तो जहां से आप क्या करेंगे, B1 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि आपने सारी वैल्यूज को इन टर्म्स ऑफ B1 कन्वर्ट कर दिया है। जितनी भी वैल्यूज वेलोसिटी की थी, चाहे वो V2 थी चाहे V3 थी, उसको B1 कन्वर्ट किया, B1 की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो डिस्चार्ज आपने फाइंड आउट करना है, तो दैट इज इक्वल टू A1 में D1 की वैल्यू है π/4 इंटू D1 स्क्वायर। तो B1 की वैल्यू आपको इस इक्वेशन को दोनों को आपस में इक्वेट करने से आपको B1 की वैल्यू मिलेगी। तो जहां पे आपने देखा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये डिफरेंस ऑफ द लेवल दिया होगा, तो आपको डिस्चार्ज फाइंड आउट करना है। लेकिन इसमें जो एक चीज़ आपने फाइंड आउट कर आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि इसमें जो डिफरेंट वैल्यूज वेलोसिटी की होगी, हम कंटिन्यूटी इक्वेशंस लगा के, क्योंकि कंटिन्यूटी इक्वेशन क्या कहती है हमें, A1 B1 दिस इज इक्वल टू A2 V2 दिस इज इक्वल टू A3 B3 दिस इज इक्वल टू A4 B4 सो ऑन लाइक दिस। सो जहां पे हम एक वेलोसिटी की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ अदर वेलोसिटीज निकाल लेंगे, राइट। अदर वेलोसिटीज की वैल्यू जैसे B2 की वैल्यू B3 की वैल्यू हम B1 इन टर्म्स ऑफ B1 कैलकुलेट करेंगे। रेस्ट एवरीथिंग इज गिवन देयर। जो भी ये जो क्वेश्चन होते हैं इसमें सारी चीज़ें आपको दी होती हैं, सिर्फ आपने क्या करना है, जहाँ से आप B1 को कैलकुलेट करें, सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, B2 की जो वैल्यू जहाँ जहाँ भी आपको B2 दिखाई देगा, B2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B1 जहाँ पे पुट कर दें,
जहाँ जहाँ भी आपको V3 दिखाई देगा, V3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1 पुट करें और उसके बाद आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करें। सॉल्व करने से आपको V1 की वैल्यू मिलेगी और V1 की जब वैल्यू मिलेगी तो डिस्चार्ज क्या होता है, A1 B1, तो उसको पुट कर दें, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चंस, जो एक सिंपल, अभी तो सिंपल क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ जो आपके एज पर जो डेफिनेशंस, एज पर जो आपने डेरिवेशंस किया है, आर यू कैन से दिस इज कन्वेंशनल टाइप ऑफ क्वेश्चन। और जब तक ये क्वेश्चन आप नहीं करेंगे तो जो आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं, खासकर गेट एग्ज़ाम में आते हैं जब दूसरे, क्योंकि वो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे और कंसेप्चुअल क्वेश्चन तभी आप कर सकते हैं जब तक आपको कंप्लीट कंसेप्ट आपको क्लियर ना हो। यू अंडरस्टैंड। और जो मैंने देखा है कि जहाँ पे जब भी मैं आपको कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स इसलिए करवाता हूँ कि जो आपने टॉपिक एज ए थ्रेटिकल पढ़ा है, तो अगर आप उसको न्यूमेरिकल उसके साथ करेंगे, उसकी जो एप्लीकेशंस होंगी उसको करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। बट जो मैंने जो महसूस किया है, द स्टूडेंट्स दे डोंट वांट टू सी द सच टाइप ऑफ द लेंथी न्यूमेरिकल्स। मैंने दे दिया था, अदरवाइज आई डोंट वांट टू गिव दैट, बट फिर भी मैंने सोचा कि आपको समझाने के लिए, इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया, सिर्फ आपको इसका मेथड बता दिया कि किस तरीके से आपको करना है और इसमें क्या क्या कंसेप्ट हैं। क्योंकि न्यूमेरिकल्स तो आपको ये तो समझ आ गई कैसे करना है, बट जब आपको प्रैक्टिकली अपने न्यूमेरिकल निकालना होगा तो ये चीज़ें थोड़ी पता चलेंगी आपको कि B2 की वैल्यू और B3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ B1 अपने कैलकुलेट करनी है। यू अंडरस्टैंड दैट? तभी तो डिस्चार्ज निकलेगा। तो ये चीज़ें आप तभी कर सकते हैं। मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स किया करें आप, बुक्स में बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, डिफरेंट बुक्स लें, न्यूमेरिकल्स करें और उसके बाद फिर जो आपका गेट के हिसाब से जो छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स होते हैं या ESC के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके बाद उनको सॉल्व करें। पर पहले आपने अगर जो टॉपिक करना है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आप न्यूमेरिकल्स के ऊपर जोर दें। और अगर, क्योंकि मेरा एक था कि हर जब जो भी चीज़ पढ़ाए उसका न्यूमेरिकल्स बहुत ज़रूरी होता है करना, तो अगर आपको लगेगा कि ज़रूरी है तो करते जाएंगे, अगर नहीं लगेगा ज़रूरी है तो जैसे आप चाहेंगे वैसे आपको पढ़ा देंगे। देयर इज़ नो पॉइंट, देयर इज़ नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है ना। तो आज ये आपका था पाइप्स इन सीरीज़ एंड इक्विवेलेंट पाइप के बारे में। आई थिंक हमने काफ़ी डिटेल में सारे कंसेप्ट इसके पढ़े और इसके रिगार्डिंग हमने एक एक न्यूमेरिकल्स भी कर दिया कि हाउ वी विल यूज़ दिस फॉर कैलकुलेटिंग द अदर थिंग्स, किससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। आज इतना ही था। तो नेक्स्ट टॉपिक जो इसका होगा वो जल्दी हम इसका नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे, राइट। सो थैंक यू वेरी मच।